شروع کریں. ٹیک ون. اچھا احباب، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. آج ہم نے وائس آف رائٹرز کے تحت جس تقریب کا اہتمام کیا ہے اس کی صدارت فرما رہے ہیں معروف افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، فلم ساز جناب علی اریان صاحب، اور ہمارے آج کے مہمان اعزاز ہیں جناب محمد اورنگزیب سجن صاحب. لیکن خصوصی طور پر یہ جو تقریب ہے وہ ہم نے برصغیر کے ممتاز افسانہ نگار، شاعر، نقاد، کئی کتابوں کے مصنف جناب سید ماجد شاہ صاحب کے اعزاز میں منعقد کی. اور خاص طور پر ان کا ایک ہندکو ناول جس کی بڑی سطح پر پذیرائی ہوئی، بلدہ دیوا، وہ جب منظر عام پر آیا اور اس کی پذیرائی میں آپ یوں کہیے کہ نہ صرف ملک کے بلکہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں کے طول و عرض میں اس ناول کی اتنی پذیرائی ہوئی. اور خاص طور پر وہ جو بلدہ دیوا ہندکو زبان میں ناول جو لکھا گیا اس کو پھر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. وہ ایوارڈ کیا ہے اس کی تفصیل تو احباب بات کریں گے. تو ہم نے جو ہماری یہ دوستوں کی انجمن ہے، جو یہ تنظیم ہے، وہ کہ ہم کہتے ہیں کہ وائس آف رائٹر ایسی تنظیم ہے جس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تنظیم والی کوئی بات نہیں ہے. جس کا جی جو چاہتا ہے وہ بولتا ہے. اور یہ بڑی ایک بے سمت قسم کی تنظیم ہے، اور بلکہ بڑی روایت شکن سی تنظیم ہے. اور ہم خاص طور پر ایسا صدر ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہماری اس تنظیم میں ایڈجسٹ ہو جائے، اور جو صدر ایسا ہو کہ جو ممنون ہو. پہلے ہی جب وہ ممنون ہوتا ہے تو پھر وہ ہمارے معیار پر پورا اتر آتا ہے اور اس کی کوئی سنتا نہیں ہے. سب اسے کہتے ہیں کہ صاحب صدر آپ ہماری اجازت سے بولیں. تو ہمیں آج کے جو بہت ہی خوبصورت صدر ہمیں محسوس ہوئے وہ جناب علی اریان صاحب ہیں. تو ہمارے ہاں اصل میں یہ دوستوں کی ایک تنظیم ہے جس میں ہم بلا تکلف بات چیت بھی کرتے ہیں اور ہم بے ساختگی کو رواج دیتے ہیں اور کوئی مصنوعی پن نہیں ہے. میں اسے کہتا ہوں کہ یہ 502 ورکشاپ کے جو پارک ہے اس میں ہم نے یہ تقریب منعقد کی ہے، لیکن یہ حلقہ 302 ہے بلکہ یہ 302 اور 307 کا حلقہ ہے جو کہ سید ماجد شاہ صاحب کا حلقہ ہے بنیادی طور پر. تو میں بھی اس کا ایک چھوٹا سا رکن ہوں، لیکن میری کوئی سنتا نہیں ہے. سارے احباب بڑے بڑے عہدیدار یہاں تشریف فرما ہے. یہاں اس تنظیم کے صدر بھی ہیں، اس تنظیم کے چیئرمین صاحب بھی موجود ہیں، نائب صدر بھی بڑے بڑے عہدیدار ہیں. تو یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر دوستوں کا حلقہ ہے، بے ساختگی ہے اور روایتی طریقہ کار نہیں. بہرحال میری گفتگو شاید طویل ہو رہی ہے، میں اسے مختصر کرتا ہوں. اور میری گزارش ہوگی کہ ہم آج کی اس تقریب میں جناب سید ماجد شاہ صاحب کی شخصیت اور ان کے فن کے حوالے سے گفتگو کریں. بنیادی طور پر ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ایک خاص بات آپ کے گوش گزار کروں کہ یہ جتنے بھی یہاں دوست ہیں یہ محب ہیں ماجد شاہ صاحب کے. خاص طور پر چودھری ناصر صاحب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ آج کی تقریب کے خاص میزبان ہیں. اور انہی کی انفرادی یہ کوشش تھی کہ آج تقریب مس نہ ہو اور آج کی تقریب یہاں ہونی چاہیے. تو چودھری ناصر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں
इकट्ठे होने का मौका दिया। मैं गुजारिश करूँगा जनाब शाहिद हनीफ साहब से कि वो आज की इस तकरीब के हवाले से ख़ास तौर पर जो हमारे मेहमान हैं जिनके एजाज़ में आज तकरीब मुनक़्क़द की जा रही है उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। प्रोफेसर शाहिद हनीफ साहब जो अफसाना निगार हैं और बहुत खूबसूरत नक्काद हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इस मौके पर इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आया उवैद साहब ने तारुफ में सारा ज़िक्र कर दिया। आज सैयद माजिद शाह साहब की जो तख्लीक़ात हैं उनको हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो मेरी दानिश में तो ये है कि ये असर हाज़िर में जो अफसाना है और जो हमारे माशी माशरती हालात हैं उनके सैयद माजिद शाह साहब नबाज हैं और उन्होंने आए रोज़ जो पेश आमदा हमारे मसाइल हैं, माशरती मसाइल, उन पर एक ख़ास ज़ाविया सोच से यानी उन्होंने देखा है और जो उन्होंने देखा और महसूस किया वो उन्होंने अपने अफसानों में और अपने ये किताब बल्दा दीवा के हवाले से भी। तो ये एक हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक ऐसे इल्मी शख्सियत मौजूद है कि जिसने हमें भी माशरे में होने वाली रूटीन की चीज़ों को किसी और नज़र से और किसी और ज़ाविये से देखने की ना सिर्फ हमें सलाह दी बल्कि हमें दावत भी दी है। और इसी का ये शायद यानी यूँ समझिए कि नतीजा है कि उन्हें यानी इतने बड़े अवार्ड से जो है वो उनको दिया गया। तो ये मेरी तरफ़ से उनके लिए यानी चंद कलमात थे। यकीनन वो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं और हमारे लिए मशअल राह। क्या बहुत खूबसूरत तासुरात का इजहार किया आपने शाहिद हनीफ साहब। मैंने एक बरजस्ता एक शेर कहा था, इस हवाले से आपकी नज़र करता हूँ कि जेड़ा वेखे आखे वाह बल्दा दीवा माजिद शाह। जेड़ा वेखे आखे वाह बल्दा दीवा माजिद शाह। मैं बड़ी मोहब्बत से अब दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर जावेद मुनीर काज़मी साहब से, हमारे इस हलके की रौनक, रूह रवां और बहुत सी सलाहियतों के मालिक, नई नस्ल के नुमाइंदा शायर भी आप उन्हें कह सकती है, जनाब डॉक्टर मुनीर काज़मी साहब से दरख्वास्त है कि इस मौके पर कुछ इज़हार ख्याल फरमाएँ। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस हवाले से मेरे अल्फाज तो बहुत छोटे थे शाह जी आपके हवाले से अगर मैं कुछ बात करूँ, लेकिन मुझे आपसे हमेशा सीखने का मौका मिला है, चाहे वो आपकी रूटीन की बातें हैं, चाहे वो आपके अफसाने हैं, चाहे आपने कुछ नज़म की सूरत में सुनाया, मैं हमेशा उनसे इम्प्रेस हुआ हूँ और अल्लाह आपको और बरकत दे। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप सब लोगों से सीखूँ और ये जो वक्त हमारा यहाँ पर गुज़रता है जब भी ऐसी कोई तकरीब होती है उसके बाद अगली तकरीब तक इसकी यादें रहती हैं और इन्हीं यादों के सहारे बहुत से ऐसे लम्हात गुजरते हैं जो शायद अमूमी तौर पर न कट पाएँ। तो आज की ये तकरीब भी मैं यही समझता हूँ कि बहाना तो ज़ाहिर है आपके एजाज़ में ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई, नासिर भाई ने ऐसा सारा इंतज़ाम किया, लेकिन जो यादें हैं वो इससे कहीं बढ़कर हैं और अल्लाह पाक इन सब यादों के जो है सहारे से और इस सब प्यार और मोहब्बत के हवाले से हमारा ये मौजूदा जो मजलिस है इसको मज़ीद तरक्की दे और आप दिखते रहें और हम बैठते रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद मुनीर काज़मी साहिब। अहबाब हमारे दरमियान बहुत ही एक फ़ाल नौजवान दोस्त जिन पर हम बड़ा फ़ख्र करते हैं और जिनका रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अदबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में
बड़ा हिस्सा है। जनाब इम्तियाज़ कुरैशी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हमारे लिए एज़ाज़ कि वो उन्होंने हमारी दावत को कबूल करते हुए वहाँ तशरीफ़ लाए। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इस मौके पर कुछ इज़हार ख्याल फरमाएं। बहुत शुक्रिया उबैद साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस ज़िंदगी से भरी तकरीब में मुझे नाचीज़ को इनवाइट किया, और नासिर साहब का कि उन्होंने ये बड़ा अहम इजलास है और बड़ी अहम तकरीब इस हवाले से है कि सैयद माजिद शाह साहब के हवाले से जब से इनकी किताब आई है, जो नावल आया है, मैं ये समझता हूँ कि ये अहमियत उस हवाले से भी बढ़ जाती है कि हमारे यहाँ इस किस्म की जो तकारीब हैं, और ख़ास तौर पे रीजनल लैंग्वेजेस के हवाले से वो बहुत कम होती है। पंजाबी ज़ुबान के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ बड़ा काम हो रहा है, लेकिन हिंदको के हवाले से और वैसे ये पटवारी लैंग्वेजेस के हवाले से उतना काम उस तरह से नहीं हो रहा, और अगर हो भी रहा है तो उसको उतना फ़रोग़ नहीं दिया जा रहा, और उस तरह से उसकी पजीराई भी नहीं हो रही। हालांकि राइटर के लिए ये पजीराई कोई मानी नहीं रखती, उसने तो लिखना है। शाह साहब के हवाले से मैं बात करूं तो शाह साहब के दो बड़े हवाले हैं। मैं दर्स व तदरीस के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ, एक तो हवाला वो हो गया, लेकिन शाह साहब का जो काम है ना उर्दू ज़बान और फिर रीजनल लैंग्वेज में, यानी इनकी हिंदको ज़बान जो है, क्योंकि मेरी भी ज़बान हिंदको है लेकिन मेरा पेशावर से है ताल्लुक़, उस हवाले से इनका जो है फ्लेवर जो है वो एबटाबाद से आता है। तो इस हवाले से तो शाह साहब का वैसे ही हमें मशहूर भी होना चाहिए और इनकी पजीराई भी बनती है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह का काम ये कर रहे हैं वो बड़ा मेयारी काम कर रहे हैं। उस नावल के हवाले से देख लें, उर्दू के हवाले से देख लें, लेकिन चूँकि मैं इस हवाले से कर रहा हूँ कि उर्दू में तो बहुत काम हो रहा है ना, उर्दू में तो अफसाने भी लिखे जा रहे हैं, शायरी भी हो रही है, लेकिन ये इनके लिए इनका मैं समझता हूँ कि जितनी भी पजीराई की जाए वो कम है, कि जिस हवाले से इन्होंने एबटाबाद की और हिंदको की मजमूई तौर पे जो फ्लेवर उठाया, उसमें जो वहाँ के कल्चर, वहाँ का लोक विजडम जो है वो हमारे सामने पेश किया, उर्दू अदब में पेश किया, और कल को अगर ये नावल जो है हिंदको ज़बान से उर्दू ज़बान में और दूसरी ज़बानों में जब ट्रांसलेट होगा तो वो एक और इनकी क्रेडिट में एक और अहम बात चली जाएगी। तो मैं नासिर साहब का और आपकी तंजीम का ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये तो बड़ी जानदार तकरीब है, क्योंकि यहाँ सारे इनके फ़ैन भी हैं, इनके दोस्त भी हैं, इनके चाहने वाले भी हैं। लेकिन इस तरह की मुझे ये दुख है और थोड़ी सी मुझे ये कसक है कि हमारे इस एरिए में मुझे ये मैं देख रहा था कि शायद कोई बड़ी तंजीम जो है इस तरह से कोई बहुत बड़ा कोई करना चाहिए। उस तरह से ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बिल्कुल हरगिज़ किसी हवाले से भी ये छोटा काम नहीं है, लेकिन किसी तंजीम ने इस तरह नहीं किया है कि एक ऐसा अच्छा नावल, बहुत अच्छा नावल इन्होंने लिखा, और इनके अफसाने भी हैं उस ज़बान में, तो उसको सामने किया जाए। अगर एक शख्स, एक तख्लीकार अगर रीजनल लैंग्वेजेस में इतना काम कर रहा है तो उसको उस तरह से पजीराई भी करनी चाहिए ना, लेकिन वो पजीराई चूँकि है नहीं है हमारे यहाँ। मसला ये है, शाह साहब का ये मसला नहीं है, लेकिन हमें तो उसकी मानना चाहिए ना, उसकी तस्लीम तो करना चाहिए। ये एक तस्लीम ही होता है ना, इखराज ही होता है। तो मैं इस हवाले से शाह साहब का तो क्या फ़न के ऊपर हम क्या बात करेंगे, शायरी के हवाले से भी, तनकीद के हवाले से भी, और ये नावल के हवाले से भी जितनी भी बात की जाए वो कम है। लेकिन मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे दिल में ये महसूस करता था कि हमें इंतसाब कहानी को भी कोई एक ऐसी तकरीब करनी चाहिए जिसमें इस नावल के ऊपर बात होनी चाहिए, और लोगों को मदऊ करके इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसका हवाले पे जो है ना इसको उजागर किया जाए। लेकिन आप लोगों ने ये क्रेडिट ले लिया तो ये आप लोगों के लिए जो है बड़े एजाज़ की बात। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत बात आपने की। असल में अदब जो है ये एक स्लो मीडिया है। जब आप लिखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक ट्रैवल करता है, लेकिन ये स्लो होने के बावजूद बड़ा मुवस्सर, इससे ज़्यादा मुवस्सर मीडिया भी शायद कोई ना हो।
तो ये सीना बसीना चलता है आगे, फिर किताब की सूरत में भी फैलता है। तो शाह साहब का, सैयद माजिद शाह साहब का जो फ़न है, मैं ज़ाती तौर पर एक दो जुमले ये कहना चाहूँगा इस मौके पर कि जो जदीद अफसाना है ख़ास तौर पर, जहाँ पर मंटो उसका अगर अफसाने का नुक्ता अरूज एक ख़ास रवायत के साथ जहाँ मंटो आता है, उससे आगे हम देखते हैं कि उस रवायत को लेकर जो वाक़तन अगला सफ़र है वो कहाँ से शुरू होता है। और ख़ास तौर पर फिर जब हम इस अहद में आते हैं तो जदीद अफसाना कहाँ लिखा जा रहा है, जदीद अफसाने की वो रमज़ियत क्या है, उसके ख़त व ख़ाल क्या है। तो ये जो हमारा अदब का कारी है, मुझ जैसा ख़ास तौर पर या एक तालिब इल्म है, वो सोचता है कि जदीद अफसाना भाई ये क्या, इसकी क्या मानवियत है, ये क्या है, क्या ये तजरीदी है, अलामती है, बयानिया है, तरक्की पसंदाना है, रोमानवी है, असातीरी है, बहुत से सवालात हैं। मुख्तसर ये कि जब ये सवाल लेकर मैंने शाह साहब की किताब को पढ़ा, इनकी एक किताब ख़ाफ जो मुझे बहुत पसंद है, और इसी तरह इनके अफसाने रे, मैं ये समझता हूँ कि जदीद तर अफसाना, जदीद तर हिस्सियत के साथ, जिसका डिक्शन भी नया है, ताज़ा डिक्शन है, जो क्लीशे से पाक है, जो जिसमें कहानी को बरतने का एक जो अंदाज़ है, और वो कहानी को जदीद अफसाना निगार किस तरह बरतता है, बज़ाहिर कहानी को किस तरह जज़्ब करता है, उसमें कौन सी तकनीकें इस्तेमाल करता है, उसमें क्या फ्लैशबैक टेक्निक क्या है, शऊर की रो क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। तो ये सारी जितनी भी टेक्निक्स आज की हैं, फिर असातीरियत और तारीखियत, वो भी शाह जी के यहाँ हमें नज़र आती है, लेकिन वो बड़ी पेचीदगी के अंदर उनके यहाँ जितना इख्तिसार है, कफ़ायत लफ्ज़ी है, और जो काट है लफ्ज़ों की, जो जदीद अफसाना निगार के पास होनी चाहिए, वो हमें शाह जी के अलावा बहुत कम देखने को मिलती है। तो मैं तकरीब को आगे बढ़ाता हूँ। मैं बहुत ही मोहब्बत से नई नस्ल के एक नुमाइंदा शायर चौधरी नासिर साहब, जो आज की इस तकरीब के मेज़बान भी हैं, उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार सैयद माजिद शाह साहब से मेरा तल्लुक़ तकरीबन 7-8 हो गया। मुझे याद पड़ता है कि हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, इकरार हुसैन, वो पिंडी में आए तो मुझे कहने लगे कि भाई आज आप मेरे साथ चले इस्लामाबाद, मैं एक बंदे से आपको मिलवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। वो मेरे साथ बैठ के रास्ते में उन्होंने इतनी तारीफ़ की कि मैं यकीन करे मैं परेशान हो गया कि यार क्या चीज़ है। जब इनके पास गए, इन्होंने माशाल्लाह बड़ी हमारी खिदमत की। फिर इन्होंने हमें 2-3 नज़में सुनाई, 1-2 गज़लें सुनाई, मेरी भी सुनी। मैंने जब इनकी नज़्म सुनी तो मुझे यूँ लगा कि ये नज़्म के शायर है। जब गज़ल सुनी वो इतनी शानदार थी, मैंने सोचा कि गज़ल मुझे, किताब इन्होंने मुझे दी, मैंने घर आके किताब पढ़ी, रात को भी सुबह दिन को भी। फिर मैंने विराट भाई को कहा, मैंने कहा भाई आपने तारीफ बहुत कम की, और यकीन करें मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। वो कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं बताता, लेकिन मैं इनको जब ये चीज़ें सुनाते हैं मैं बड़े गौर से सुनता हूँ, दाद कम देता हूँ, बड़े गौर से सुनता हूँ, और वो चीज़ें मुझे फिर काम भी देती हैं। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ने लंबी ज़िंदगी दे, ये हमारे लिए इसी तरह हमारी मुलाकात जारी रहे, और ये